अपॉर्चुनिटी को लेके या इस मौके को लेके आगे बढ़ के you are able to get a good college for the MBA admission. And this is where this DAG group मैंने जो इनके बारे पता किया है, and I've been connected with them now for the last 1 or 2 years, basically as an advisor. When Rekha ji invites me कि ये एजुकेशन पार्टनर्स हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की, इंडिया में भी और बाहर की भी. तो हमें ये देखना बेटे कि इस टाइम में कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें आप MBA कर सकते हैं. और देखना बेटे 2 साल के बाद में जो रिकवरी होगी इकोनॉमी की, इंडिया की सबसे पहले रिकवरी होगी एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर कंट्रीज. टॉप 10 कंट्रीज जो होंगी इकोनॉमिक रिकवरी की, उसमें इंडिया का भी नाम है उसका. लॉट ऑफ studies are saying, lot of consulting firms have given made out surveys, that's what they're saying. तो बेटा आप ऐसे करना कि अभी मैं इस सेशन में सुनता रहूंगा, आप जो भी कहेंगे, जो भी बात करेंगे हमारे काउंसलर से. हमारी रेखा मैडम है, वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, वेरी नॉलेजेबल एंड एन एक्सपर्ट इन काउंसलिंग, शी विल स्पीक टू यू. उसके बाद पे हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, केस मैनेजर्स हैं, वो भी बात करेंगे. कोशिश यही करेंगे बेटे बेस्ट ऑप्शन आपको दिया जाए, जिससे कि एक कहते हैं वैल्यू फॉर मनी. If you are spending some money on fees or other charges, उसका आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? And since you belong to a middle class family, you know it's very difficult to make both ends meet. I also belong to a middle class family. It's very difficult. तो बेसिकली हम अब यही करेंगे बेटे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे. You take a decision and then you discuss, decide, and then we can come to some sort of understanding that this is the best for you. और मैं बीच में जो भी 20, 30, 40 मिनट जो बात होगी आपसे, मैं सुनता रहूंगा आपकी बात, और जिसमें अगर मुझे कुछ बोला हुआ I'll come and speak. तो रेखा जी, without further ado, please take over. और what I can see from Sakshi is a very bright young girl, बड़ी smart है, and she is very active, I can say. And मेरा ये मानना है कि रेखा जी इसको थोड़ा अच्छा एडवाइस दीजिए, हमारी बच्ची का कुछ अच्छा हो जाए. And she comes to after 2 years becomes a corporate manager after joining a good company. Thank you, Rekha ji. Please take over. Yeah, thank you, Manchanda ji. Thank you very much. So, very good afternoon, Sakshi. How are you, biche? Good afternoon, ma'am. Great. So, Sakshi, important is you have to be a bit loud because I'm just getting your voice a bit low. So, Sakshi, Okay. So, Sakshi, very important. We'll initiate this journey of great preferences and prospective future options for you. But before that, it's important that we understand Sakshi as a person. So, Sakshi, in this case, before we share a few inputs, we would like to hear from you. Number one, Sakshi, your academic career, if there was any extracurricular activities or achievements that you should share, number one. Number two, about your family and your siblings. And number three, the most important, Sakshi, where exactly you see yourself after 2 good years. Take 2 to 5 minutes and share all your inputs. Yes, Sakshi. Okay, so for the extracurricular activities, I have been doing anchoring and been a part of theatre society in my college. And regarding my family and siblings, I have a joint family, and my father is a businessman. We have a family business, and I have 2 siblings. One is in DU. She's doing her graduation from there, and the other he's in 12th. Okay. So, Sakshi, your aspirations, the most important thing. Where exactly you see yourself after 2 good years? After 2 good years, obviously with a good degree and in a good corporate society, in a good corporate company where I can be at a good post, having a good salary package. Okay, so Sakshi, in this case, what exactly I perceive, you are the eldest child of the family? Yes. Okay, so being the eldest child of the family, it means there is a great sense of responsibility on you as far as the career option is concerned, right? Yes. Because your siblings are going to follow your footsteps, and that is something very important. And I do understand कि घर के बड़े बच्चे पे एक अलग तरह की जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स बोले या ना बोले. Now something important, Sakshi, you shared about anchoring and theatre society. So beta, you have certifications for all this? Oh yes, I have. Okay, that's great. That sounds great.
So Shubham Trikala, kindly make note of it, because once we're going to make a profile of Sakshi, these will be very important aspects. Okay. Now Sure, ma'am. And Sakshi, I have yeah, a NCC certificate too, but that was in school. I had done that uh, grade that A NCC. that sounds very sweet, Sakshi. But the certification is very strong, I'll say. You don't get NCC grade A easily. So you have to work a lot, but you missed out that. Anyway, so definitely we are going to add that as well. So Sakshi, in this case, what exactly you feel for your masters? करना क्यों चाहते हैं MBA या PGDM program? Actually, I had done BTech in computer science BTech in computer science from where, beta? from SGT University. And SGT University, Gurugram? oh yes, Okay. and now I'm doing a job in NIIT company, which is situated in Gurgaon itself. In Okay. testing field, in the same BTech field. It was a campus placement. So I am working from home right now since due to this all pandemics. So I just wanted to, I mean, to grow up since NIT is also a great company, and to just move for the post or to go above, I need a post graduation degree. Yeah, that sounds great. So, Sakshi, in this case, when exactly you started your career in NIIT as a working In professional? in 26th February was my joining date. 26 Feb, you started working with NIIT, and this is your final year of BTech Computer Science, right? Not Yes, yes. not graduated. Okay, no issues. So, in this case, Sakshi, what exactly is the financial year withdrawing? I would like to understand that also. Sorry. I mean the What exactly is your salary component in NIIT right now? it's 18,000 per month. Perfectly okay. So now, Sakshi, one thing important. Sakshi, you have to understand that this communication will not be very formal. Reason, beta. You're talking to experts from, education industry spending more than 30 to 40 years, whether it's Manchanda ji, myself. So we have analyzed this education industry, and this has been the component where we have spent the life, a major portion of the life. So, Sakshi, we will be going on a very friendly note with you, not as a client, not as a student, just an extended family member. अगर हमारा बच्चा होता तो हम उसे क्या गाइड करते, ठीक है? तो उसी पैरेलल नोट पे हम लोग चाहेंगे कि आप भी उसी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, अपने फ्यूचर ऑप्शंस को लेते हुए. अभी आपके साथ शुभम त्रिकाला है, वन ऑफ द फाइनेस्ट काउंसलर आई से. He requested for individualized session, so definitely that's why management is here. एंड सेकेंड थिंग, यू हैव फाइनेस्ट केस मैनेजर मिस्टर अनमोल सोनी, जो बहुत ही सरलता से बच्चों को बात करते करते लंदन तक भी पहुंचा देते हैं. तो आप समझ सकते हैं, अगर ऐसी कोई एस्पिरेशन है एजुकेशन अब्रॉड की, या कोई ऐसा सिस्टम हो कि इंडिया से आपकी जर्नी शुरू हो और आप अब्रॉड तक पहुंच जाएं, तो आप अनमोल से जरूर शेयर करें, जस्ट कंसिडरिंग एज योर एल्डर ब्रदर. ओके, so the communication needs to be very open and very transparent. I'll be connecting with you once again during the concluding part. So over to Anmol. Anmol, kindly initiate your discussion as far as preferences are concerned, Bache. Hello. Hello. Yeah, hi Sakshi. Hello. Hi. Yeah, Sakshi, मुझे बताएंगे आपने कोई एंटर एग्जाम दिया है? Entrance कैट का, exam. मैट का? Yes. I have given CAT. And what's the percentile? It was not good. It was around 55 percentile. Since at that time my final exams were going on. Okay. And आप MBA करना चाह रहे हैं या PGDM? MBA. MBA. Okay. Which specialization course? Finance, Um, HR, marketing. that was the only my concern to be in this session. That I really wanted your opinion that what specialization course should I opt for? Okay. Basically आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? फाइनेंस में, अकाउंट से रिलेटेड है, कैसा है आपका इंटरेस्ट? Finance is good. Okay.
Okay. साक्षी देख कर रहे हैं अपना दिल्ली में ही देख रहे हैं, आउट ऑफ दिल्ली प्लान कर रहे हैं कॉलेजेस? I mean, it would totally depend upon the college कि अगर जैसे दिल्ली में अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो फिर दिल्ली में ही, और अगर दिल्ली से बाहर मिलता है तो फिर बाहर भी, no issues. ओके फाइन। सो साक्षी मैं आपको कुछ कॉलेज की ऑप्शन सजेस्ट कर देता हूँ। अगर बात करता हूँ अच्छे कॉलेजेस की, तो आपने नाम भी सुना होगा, फाइनेंस से रिलेटेड एक अच्छा कॉलेज है IFIM बेंगलोर। IFIM Okay. राइट, यू कैन जस्ट आल्सो राइट डाउन IFIM बेंगलोर में आपका हो जाएगा। बेसिकली फाइनेंस के रिलेटेड काफी अच्छा कॉलेज है ये, राइट। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे आप कह रहे थे मैं 2 इयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मूव ऑन करना है, तो सबसे अच्छा कॉर्पोरेट का हब भी आपका बेंगलोर के अंदर है, वो तो है। राइट। सो अगर उस चीज के सिनेरियो से देखते हैं तो डेफिनेटली वहां से आपको ज्यादा अच्छा स्टडी करने का जरूरत है, जहाँ पे आपको अच्छी कंपनीज मिले इजीली, राइट। और अगर दिल्ली में अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो दिल्ली में आपने अपने गुड़गांव में ही सुना होगा सोइल स्कूल ऑफ इंस्पायर लीडरशिप, राइट। वो ऑप्शन भी है, वी आल्सो प्रोवाइड यू दैट वन आल्सो, राइट। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो आप अपना IMI का आपने नाम सुना होगा, IMI वहां पे भी आपका हो जाएगा। बेसिकली जो आपको कॉलेजेस में जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, राइट। इसके अलावा आपका जो कॉलेज प्रेफरेंस है, और कहाँ पे देख रहे हैं? कोई अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर करी गई होगी, आई थिंक आपको शुभ ने लिस्ट शेयर करी है, उसमें से कोई प्रेफरेंस? उसमें एक MDI था गुड़गांव में, एक जिम्स था, एंड मेनली यही दो थे। ओके 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 भाई, ठीक है साक्षी। तो ये 5 प्रेफरेंस जो मैं आपको जस्ट हुई, आपकी IFIM हो गया, सोइल, MDI, आपकी IMI और जेम्स, राइट। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसमें नंबर 1 पे आपका IFIM, नंबर 2 IMI, MDI, सोइल, जेम्स, राइट। ठीक है, ये सब आपके दिल्ली के कॉलेजेस भी हो गए और आपके बाहर के भी हो गए इसमें से, ठीक है। तो इन्हीं 5 कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड मैं एवरेज सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करता हूँ इन कॉलेजेस की, तो इनकी जो सैलरी का पैकेज एवरेज जाता है वो एक नॉर्मल मींस एवरेज पैकेज स्टार्ट आपका 8 से 10 लाख रुपीस के अप्रोक्स होता है, राइट। एंड अप टू 20 से 22 लाख रुपीस आपका जाता है। और वो डिसाइड आपके कैलिबर के ऊपर करता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर करता है, क्योंकि आपका एडमिशन आपका हो जाता है कॉलेज के अंदर, लेकिन आपको अल्टीमेटली वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपना इंटरव्यू क्लियर खुद करना पड़ता है प्लेसमेंट टाइम पे, राइट। क्योंकि कॉलेजेस वाले हमेशा आपको प्लेसमेंट की कंपनीज बुला के दे सकते हैं, लेकिन आपकी जगह इंटरव्यू नहीं दे सकते वो, ठीक है। तो इनमें आपका एडमिशन, आपके जो एडमिशन होगा वो आपका टोटली प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होगा, क्योंकि आपके कैट में परसेंटाइल कम है तो डायरेक्ट तो आपका कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जो आपकी प्रोफाइल होती है उसको बिल्डअप करना पड़ता है, राइट। उसमें आपका एक CPCG, आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट सुना होगा अपना, जो करियर प्लानिंग करियर गाइडिंग का एक टेस्ट होता है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ HRD से अप्रूव्ड है, वो आपका होता है। प्लस आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनता है, आपके 2 LOR बनते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मैं मिस्टर मनचंदा सर को कहूंगा वो आपको LOR बनवा दें, ताकि जिसमें आपको वो अपने IP के वो सर काफी टाइम से एजुकेशन इंडस्ट्री में प्रोफेसर भी हैं, तो वो अपने लेटर हेड पे आपको रिकमेंड कर देंगी, ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी पढ़ने के लिए, राइट। ठीक है। सो ये प्रॉपर जो आपका एडमिशन रहता है टोटली आपका प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होता है, ठीक है साक्षी। इसके अंदर आपका प्रोफाइल, क्योंकि आप एक नॉर्मल बच्चा है जो उसके कैट में अगर 95, 98, 90 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है ऑन द मेरिट, राइट। बट आपका केस में अगर स्कोर आपके कम है तो आपका जो एडमिशन मिलता है वो टोटली प्रोफाइल बेस्ड और रेफरेंस बेस्ड एडमिशन होता है। तो जो कॉलेजेस हमारे पास मैंने आपको सजेस्ट करे, आपको लिस्ट में मिले होंगे, उन सबसे हमारा टाई अप रहता है, तो उनमें हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। और सेकंड थिंग, जो आपकी कॉलेजेस की फीस रहती है, जो कॉलेजेस की फीस है वो आपकी मेरिट वाली फीस रहती है, उसमें कोई फीस में आपका एक्स्ट्रा नहीं लगता कि आपको फीस एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा, कॉलेज में फीस ज्यादा होगी या कम होगी, राइट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका एडमिशन कैसे होता है, राइट। स्टार्टिंग में जो आप कॉलेजेस प्लान करके मुझे देते हैं तो उनमें हम अप्लाई करते हैं, राइट। सो यू हैव टू पे द एप्लीकेशन कॉस्ट ऑफ द कॉलेजेस, क्योंकि बिना एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए कॉलेज में एडमिशन तो नहीं आगे आप प्रोसीड होगा ना, एग्जैक्टली, राइट।
आपका लिस्ट में से आपको एनी 4 to 5 कॉलेजेस अपने सजेस्ट करने होते हैं हमारे को। उन्हीं 4 to 5 कॉलेज में हम आपका एडमिशन अप्लाई करते हैं, हम आपको कॉलेज की तरफ से, आपको कॉलेज से 5 ऑफर लेटर मिलते हैं, राइट। उन 5 ऑफर लेटर्स में आपको सोचना होता है कि मैं अब कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लूं एट द एंड, क्योंकि 5 ऑफर लेटर की ऑप्शन आपके पास आ गई, चॉइस उस टाइम अब आपके पास होगी। अभी कहीं अप्लाई करा है आपने कॉलेज के लिए? अभी तो नहीं किया, क्योंकि बिकॉज मैंने ये सोचा था कि जैसे कैट की परसेंटाइल कम है, तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं कैट 2020 देती हूँ। देखो साक्षी, अभी क्या सिनेरियो है, अभी जैसे सर ने बताया कि कोविड की वजह से जो आपकी एनआरआई सीट्स होती थी कॉलेजेस की, क्योंकि हर कॉलेज में एनआरआई सीट्स होती थी, अब कोविड की वजह से कोई बच्चा बाहर से तो नहीं आ रहा, तो उन सीट्स को कॉलेज वालों ने अपनी प्रोफाइल बेस्ड सीट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो इससे क्या है, जून जैसे आप जान भी रहे होंगे, काफी बच्चों की जॉब्स वगैरह जा रही है इस टाइम पे, और जो एक अच्छा अमाउंट का सैलरी पैकेज मिलना चाहिए बच्चों को, जैसे आपने बीटेक सीएस करके एक अच्छा पैकेज आप भी डिमांड करते हैं अपने लिए, राइट, बट वो नहीं दे रही कंपनी ड्यू टू डाउनफॉल, राइट। तो क्या है, इट्स अ वेरी मच राइट टाइम कि अपनी आप एमबीए कर लीजिए, क्योंकि एमबीए में क्यों अभी से करने को कह रहे हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमी डाउन में है, तो कॉलेजेस वाले आपको एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी फीस इंक्रीज नहीं करने वाले अभी तो, लेकिन इन फ्यूचर जब वो आफ्टर 2 years जब आप अपनी एमबीए कंप्लीट कर बैठेंगे, तो पूरी इकोनॉमी स्टेबल पे आ चुकी होगी जैसे पहले थी, राइट। तब आपके पास अच्छी प्लेसमेंट्स के लिए अच्छी कंपनीज आपको हायरिंग करने आएंगी और एक अच्छा पैकेज देके जाएंगे, क्योंकि अभी इस साल तो कोई पैकेज नहीं दे सकती ना कंपनी भी, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है अपनी कंपनी से, राइट। सो इट्स अ राइट टाइम फॉर यू कि अपनी स्टडी को इस टाइम पे करें जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो, क्योंकि कोविड की वजह से आपको जानते ही हैं कि जॉब्स में कोई ऐसा रहा नहीं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, श्योरिटी जॉब की फिर भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो उस सिनेरियो में अपनी स्किल्स को एनहेंस करके अपना स्टडी परस्यू कर लीजिए, क्योंकि जब स्टडी परस्यू करके खत्म होंगे तब आपके पास अच्छी ऑप्शन रहेगी जॉब्स की रहेंगी। और इन 5 कॉलेजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनमें प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इनमें एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज से आपको ऑफर लेटर मिलेगा, राइट। और 5 ऑफर लेटर्स आपको प्रोवाइड होंगे, उनमें से आप एक सजेस्ट करेंगे कि मैंने एडमिशन इस कॉलेज के अंदर लेना है, तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट। इनमें एडमिशन में कैसे प्रोसेस में अप्लाई हो रहता है, आपकी प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डिंग रहेगी, जो आपका प्रोफाइल बिल्डिंग करेंगे मिस्टर शुभम करेंगे, राइट। एंड इसका स्टार्टिंग का आपका एक अमाउंट रहता है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ओके, राइट, जो कि आपका 33,000 रुपीज रहता है। इसमें आपका कॉलेज के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी प्रोफाइलिंग, आपका जीएसटी, ये सब इंक्लूड रहता है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एलेबोरेट करता हूँ 33,000 के अमाउंट को भी, जैसे मान लो 33,000 है, उसमें हर एक कॉलेज का 3,000 रुपीज के अप्रोक्स एप्लीकेशन फॉर्म होता है, राइट। उन 5 to 6 कॉलेज में अप्लाई करने का एप्लीकेशन कॉस्ट ही आपका 15-18,000 रुपीज अप्रोक्स आता है अमाउंट। इसके बाद आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई, आपका जीएसटी हो गया, जीएसटी नियर अबाउट आपका 18% जीएसटी कटता है, 33,000 का आपको 5,000 के अंदर आपको इन 5 कॉलेज में अप्लाई, और इनका आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड होता है कॉलेज की तरफ से, राइट। इसमें अब तक कोई क्वेश्चन या डाउट आपकी तरफ से? नहीं। या ओके साक्षी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? रेखा मैम? Anmol, something very important. I was listening to the entire conversation. Yes, ma'am. साक्षी, कोई डाउट है तो बताइए पहले बेटा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है साक्षी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि प्रोसेस को लेके आपको क्लैरिटी है। अभी आप ये देखिए बच्चे, देयर इज सम बैंडविड्थ, हाँ साक्षी, देयर इज सम बैंडविड्थ प्रॉब्लम, सो आई हैव स्विच्ड ऑफ माय वीडियो। हाँ बताओ बेटा। हाँ, और जैसे तो 5 प्रेफरेंसेस कॉलेजेस आपने बताया मुझे, ठीक है। उसके बाद देयर वुड बी अ प्रोफाइल बिल्डिंग. So what would be needed in that profile building? I mean, how would you build my profile? Sakshi, say in this case what happens, आपने कभी abroad के लिए सोचा है बेटा? नहीं। एक जनरल कैंडिडेट जब एप्लीकेशन देता है, आप ये समझिए कि आप एक नॉर्मल लाइन में खड़े हुए हैं और वहाँ बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जो कैट बेस्ड, मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं,
this is the case, okay? So you can easily understand ki what is your percentage in CAT, 55 something you shared, right? Yeah. So you can very well assume कि जो institutions आपसे share किए हैं, even you have shared MDI and GEMS, तो हमारी जो top list होती है बेटा, हम पूरे इंडिया को अगर churn out करें, तो definitely MDI is on the top, then we have IMI, then we have IFIM. IFIM is globally recognized. आप इसको search करो कि global recognition कैसे मिला है IFIM को. जो IIMs को मिला है वो IFIM को मिला है, okay? So these are the best institutes. अब आप सोचिए एक बच्चे को 98 परसेंटाइल मिला है और IFIM का कट ऑफ 86 या 90 प्लस है, तो क्या आप एक नॉर्मल सिनेरियो में वहां जा सकते हैं बेटा? नहीं. Normal scenario में what will happen? Your application will be rejected. Now comes the profile-based admission process. What is profile-based admission process? This also you understand through one very simple example. आपने बेटा BTech Computer Science किया, I really appreciate your talent because you must have picked this program, which is not an easy program, I'll say. Okay, I know my daughter is doing BTech Computer Science. So many sleepless nights, and it needs lots and lots of caliber, right? So you have gone through that phase. But now, Sakshi, very important है कि हम आपके 12th में जाते हैं कि आप मैथ्स में 100% स्कोर करते हैं हमेशा इंटरनल्स में, ठीक है? लेकिन एग्जाम के दिन कोई घर में मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को तबीयत हो गई खराब और आप हॉस्पिटलाइज करने के लिए लेके जाते हैं उनको, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं. And the worst part is same day you're having your board exam also. So in that rush and that emotional disturbance, you reach out to your center and you're not able to perform that very day. So 365 days जो बच्चा 100% नंबर लेके आ रहा था, वो बोर्ड के एग्जाम के दिन 40% भी नहीं लेके आ पाया. Getting my concept? Yes. And the irony of the situation is this 40% you are going to carry throughout your life. Exactly. So it means कि जो आप नहीं है सर्टिफिकेशन लेके आप पूरी लाइफ चल रहे हो अपने साथ. तो ये सब जब हमने आपको शुरू में ही कहा बेटा कि एजुकेशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ आप बैठे हैं, तो हम लोगों ने 12 साल पहले ये डिसाइड किया प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे होगी. हम आपकी वो चीजें आपके लिए प्रोजेक्ट करेंगे जो आपका रियल कैलिबर है, नंबर 1. नेक्स्ट, जो आपकी सोशल इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस है, तो डेफिनेटली वी वुड लव टू आस्क फ्रॉम यू, अदरवाइज वी विल ट्राई टू सपोर्ट विद योर प्रोफाइल. वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब भी अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं साक्षी, ट्रस्ट मी, इवन इफ इन योर बीटेक कंप्यूटर साइंस यू गेट 95% प्लस, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर नंबर. दे विल से कोई सोशल सर्टिफिकेशन है तो दिखाइए. Means have you ever really worked for society? Are you getting my point, Sakshi? So when we talk of profile, these are the important aspects which we highlight. So whether it is your internship, your anchoring, your theatre societies, you're working in NGOs, helping the slum kids or underprivileged, you're getting my point? Yes. Or going for the geriatric care section where we take good care of the elders in the society. So these are the things which help in building your profile. Okay, Sakshi? Okay. So in this case, जब आपने पूछा हम आपकी प्रोफाइल कैसे बेटर करेंगे, तो वो तो बेटा आप हमारे हाथ में छोड़ दीजिए. हम लोग 40 साल से इंडस्ट्री में बच्चों को देख रहे हैं, right? So we judge, this is the round when we are not just talking to you, Sakshi, we are trying to get best out of you also. कि क्या हम साक्षी को रेकमेंड करें. कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं कि प्लीज एडमिशन करवाइए. They are ready with finances also, extra money, whatever it is. We say a big no to them if we are not convinced with the profile of the candidate. That is why we wanted to have Zoom session and understand the student. That's something very important. Okay? Okay. So here, Sakshi, you should be thankful to Shubham Trikala
one of our finest counselor who very strongly recommended you for the session, and definitely Anmol भी हैं जो बहुत आपके इस conversation को आगे लेके जाएंगे. Once the session is complete, let's say concluded, you can easily talk to your parents, discuss out, and then you can also ask Shubham Trikala to arrange for conference call where Anmol can talk to your parents if there is any doubt area. Clear? Okay. And Sakshi, very important is beta that CAT result was declared in the month of Jan and it's June now. So you can very well imagine how many seats are left. So it's not an easy thing. Aaj nahi aapne 2 din baad kiya, online order and you get that. It's not like that. You have to be very firm and very prompt. So if you take quick decisions within, few hours, and in the evening you talk to Anmol once again, the elaborative talk, I'll say, regarding all the steps and process and payment gateways, you will get the better insight, okay? But only thing is, don't lose time, because what Anmol is sharing with you right now, it's not possible that in the evening time, he might be giving you the same option, because he is going to attend more than, getting my points, Akshay? Yes. So it's basically, it's more of the survival of the fittest and your prompt decision and your active mode, okay? So that's all from my end, Sakshi, all the very best. Yes, Manchanda ji, आप कुछ कह रहे थे, हाँ बताइए. Yeah, after a few sentences to Sakshi, bete, this is the right time. Don't lose time. I've seen your profile. You got a BTech from computer science, good university. But now you, bete, NIT में आपके HR में कौन थे? Mr. Deepak Gupta है क्या HR में? आपके NIT में आप लॉ में काम करिए ना बेटे? You are working with NIT in Gurgaon ना बेटा? आपने बताया. Yes.